Good afternoon, class. Kindly, kindly start your IntelliJ. You have to solve this particular. Sorry. So you have to solve this problem as per the JDBC discussion we have done. Kindly solve this problem. I am pasting this problem in the chat window also. Okay, I am pasting the problem in the chat window. You have to solve this particular problem today. Okay, so the data is in the chat window waiting for some more participants that you have to solve this. Okay, so those who have already joined, they can start their intelligence, start solving. You just have to create a function in any class. In any class you have to create this particular function. Okay, so this function you have to create, and this is the practice how well you understand the JDBC code. Okay, so afterwards also in within 2 or 3 minutes I will repost that question in the chat window because less number of participants are there. So those who have joined, kindly start processing this. Okay, so if you have any doubt, you can post your question in the chat window, as well as you can open your microphone and you can discuss. Guys, to solve this particular problem, you do not have to create the connection. You do not have to call the select query. Okay, you just have to complete this method only. You just have to complete this method only. Okay, so some more participants are there, so I will again paste the question in the chat window once again. So you guys can start solving this. You guys can start solving this. जाओ यहाँ से
So plus I am hoping that you guys are solving this particular things because 49 people have joined later after like 49 people have joined after that 10 more people 15 more people have joined the session, so they know what to do. Sorry, you do not have to put anything over here. Okay, you have to follow the instruction, follow the I do not have any issues. You are posting it over here. What is the thing? I want you to complete this particular method process result which accept an argument of result set. Okay, your code is correct for processing a result set. Okay, so you have to complete this particular method. Keep this method in any class you want. Keep this method in any class you want. Okay, your code is correct. Your code is correct. No issues with that. So what you have to do as per your code, you have to solve this particular method. Okay. सर Yes. सर मेरे को ये जो अपना उसमें हमने लाइब्रेरी इंपोर्ट करी है इंटेलिजे में, अगर वो मेरे को इक्लिप्स में करनी होती तो वो कैसे करें? बेटा एक्लिप्स में आप सिंपली जो नीचे एक्सटर्नल लाइब्रेरीज होती है ना, उसमें या तो अपने प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करो, ऐड एक्सटर्नल लाइब्रेरीज, ऐड एक्सटर्नल जार फाइल्स होता है उसमें एक ऑप्शन। आप एक काम करो, प्रोजेक्ट पर राइट क्लिक करो, जो जो सब मेन्यू आ रहे हैं उनका नाम पढ़ना चालू करो। आई विल गाइड यू। ओके सर, वेट। हाँ सर, मैंने अपने प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक किया। उसमें फर्स्ट है न्यू, फिर गो इनटू, ओपन इन न्यू विंडो, ओपन टाइप हायरार्की, शो इन, कॉपी क्वालिफाइड नेम, पेस्ट, डिलीट, बिल्ड पाथ, सोर्स, रिफैक्टर, import, export, refresh, close project, assign working set, coverage as, run as, debug as, restore from local history, team, compare with, No beta, configure, no. There's no option I can find और out. लास्ट है properties. Just wait for a minute, है ना? Wait for a minute. What I will do, I will give you the sharing again. Okay. I'll start my Eclipse, है ना? Give me a second. Yes sir. I will need a bit time. Okay. Okay sir. So usually I am using an older Eclipse, but the settings will not drastically change. Okay. Just Yes, give me yes. the time to load because my IntelliJ is open, so it will take a bit time. What you can do, you can send me the screenshot of that on my WhatsApp number right now. Okay. Sir, my project is sir, my Yes, screen. the sub menu screenshot. Okay, the right click करके जो मेन्यू खुला था ना, उसका screenshot, उसकी फोटो खींच के मुझे WhatsApp पे भेजो। Yes. Okay, I am opening my Eclipse also. सर डन कर दिया। Yes. Good
to build path and then external live. There will be a sub menu. Okay, read that. Go to build path. There will be some menus also. Can you read that for me? बिल्ड पाथ में लिंक सोर्स, न्यू सोर्स फोल्डर, यूज एज सोर्स फोल्डर, ऐड एक्सटर्नल आर्चिव्स और ऐड लाइब्रेरीज. यस सर, ऐड लाइब्रेरीज. Add libraries. Okay. Or you can JRE सिस्टम लाइब्रेरी, J यूनिट और no. What you do? Add external jars. Archive files पूछ रहा है ना जो build path पे. ये सब बिल्ड पाथ पे मैंने ऐड एक्सटर्नल लाइब्रेरी किया. उसमें ऐड लाइब्रेरी में 4 ऑप्शंस आ रहे हैं. JRE सिस्टम लाइब्रेरी, J यूनिट और मेवन मैनेज. मैं फोटो भेज दूं सर आपको. हाँ फोटो भेजो. मैं भी अपना JDBC प्रोजेक्ट वहीं से ओपन किया है मैंने सेम उससे. क्या तो बेटा बहुत दिनों बात करो ना तो वो आपका पूरा मेरा प्रोजेक्ट जितने भी फोल्डर्स वहाँ पे होंगे ना उन सबको वो करता है वो. सब कर दिया मैंने सेंड. बेटा इससे नहीं आएगा. एक्सटर्नल करके आता है. बिल्ड पाथ पे जो ऑप्शन आता ना, कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ. ओके, तुम्हें कोई ऑप्शन दे रहा है कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ का वहाँ पे? यस सर, लास्ट में कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ पे जाओ. कर दिया सर. एक मेन्यू खुला होगा जावा बिल्ड पाथ. उसमें यस सर. सोर्स प्रोजेक्ट और लाइब्रेरीज हाईलाइटेड आया होगा. लाइब्रेरीज पे वो टिक किया हुआ है सर. हाँ लाइब्रेरीज है. लाइब्रेरीज पे जाओ और वहाँ पे ऐड एक्सटर्नल जार 2 नंबर पे ऑप्शन होता है राइट हैंड साइड पे. ऐड एक्सटर्नल चार्ट. ये देखिए लाइक आई विल डू फॉर यू. आई विल डू इट फॉर यू. सर आप शेयर स्क्रीन कर दीजिए. शेयर हाँ जी वही बेहतर रहेगा ना. मैं कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ पे गया तो मुझे ये मेन्यू खुला हुआ है ना, Yes, जावा sir. बिल्ड पाथ. इसमें मैं लाइब्रेरी टैब पे गया और ऐड एक्सटर्नल जार. इन दिस जार यू कैन सेलेक्ट दैट J कनेक्टर. ओके, वंस यू सर मैं सेलेक्ट. अपने सर उसके लिए JRE जे कनेक्टर डाउनलोड होना चाहिए. हाँ J कनेक्टर डाउनलोड सर होना J चाहिए. कनेक्टर तो है. सर इसमें मैं अपने JRE पे क्लिक कर रहा हूँ तो उसमें एडिट रिमूव दिखा रहा है सिर्फ ऑप्शन, और जो मॉड्यूल पाथ है पूरा उस पे क्लिक कर रहा हूँ तो आ रहा है सिर्फ. देख मेरे पास सोर्स है ना, ठीक है, प्रोजेक्ट yes, है, sir. लाइब्रेरी है. लाइब्रेरी में जाके मैं ऐड एक्सटर्नल जार कर रहा हूँ ना, लाइब्रेरी ऐड नहीं कर रहा हूँ मैं. कहाँ पे आया हूँ इस पे? मैं आया हूँ यहाँ पे बिल्ड पाथ. मेरे पास बिल्ड पाथ में वो सारे टूल्स नहीं दे रहा है मुझे, सिर्फ कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ बोल रहा है ना. तो मैंने जब कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ पे गया तो मैं बिल्ड पाथ पे जाके लाइब्रेरीज में गया और मैंने ऐड कर दिया. अगर मैं इस पे सेलेक्ट कर लूंगा ना, ये एडिट रिमूव दिखा रहा है. So what I want an add external library, and what I am doing, I am reaching the location where I saved my that particular J connector, and I am using this J connector. Okay, so this J connector is added into my library. Now what I can do, I can apply. Okay, and I will apply and close. Then when I reach to the my project folder, in the reference library, the J connector will be available. Yes sir, मेरे में भी आ गया सर. Okay, thank you. Thank you sir. इस मेथड को कंप्लीट करने के लिए आपको ये जो काम अभी हमने किया ये करने की ज़रूरत नहीं है. मेथड कंप्लीट कर सकते हैं, बट JDBC का कोड पूरी तरह रन करने के लिए आपको ज़रूरत है. देखिए आपके एग्जाम में मैं बोल रहा हूँ आपसे, it can come to complete insert data function, it can come to complete the update function, it can come to complete the select function, it can come to complete the delete function. Okay, so this code can directly come in your exam, so you have to be aware of that. And the changing parameter ही यहाँ पे मैंने रिजल्ट सेट के साथ आपको 4 कॉलम दिए हुए हैं ना. ओके, सो ये 4 कॉलम है, इनके टाइप भी चेंज हो सकते हैं. कि ईमेल से टेक्स्ट वैल्यू आ रही है तो आप ईमेल को varchar को समझोगे स्ट्रिंग पे मैपिंग है, टेक्स्ट की स्ट्रिंग पे मैपिंग है, इंट की इंटीजर पे, डबल की डबल पे. तो जिस टाइप का डेटा कॉलम से रीड करोगे उसी टाइप का गेटर मेथड यूज करना पड़ेगा रिजल्ट सेट का. ओके, कि किस टाइप का डेटा चाहिए. सो दैट इज अ थिंग उस चीज को ध्यान में रख के आपको काम करना है. ओके,
पैरामीटर चेंज हो जाएंगे, वैल्यूज चेंज हो जाएंगी, तो आपका जो एग्जिस्टिंग कोड है वो उस सिनेरियो पे काम नहीं करेगा. So my suggestion is do practice. Okay, in evening you will find some of the questions from JDBC on your Google Classroom for practice. Okay, so guys सर please solve. हाँ बेटा बोले. सर हमारे प्रैक्टिकल्स ही होंगे इस बार. बेटा अभी तक मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है. अगर प्रैक्टिकल होंगे तो मैं आपसे JDBC का कोड लिखवा लूंगा. मैं बोल दूंगा कि रिजल्ट सेट से ये 4 डेटा आ रहा है, ये 4 डेटा आ रहा है, इसको एक एरे लिस्ट में डाल के मुझे दे दो. ठीक है. मैं इस पर्टिकुलर का रिटर्न टाइप चेंज कर दूंगा. जैसे अभी ये वॉइड है ना, तो मैं इसका रिटर्न टाइप ये कर दूंगा, है ना. ठीक है, मैं इसका रिटर्न टाइप कर दूंगा. इसको पहले पेस्ट कर देता हूँ. इंस्टेड ऑफ वॉइड आई विल से, सॉरी कैप्स इज ऑन, array list. Instead of array list I will play with list and I will type student. Okay, ठीक है. So I will use this. So you can return me a list of containing student. अब आप कैसे बनाओगे स्टूडेंट की लिस्ट और रिटर्न कैसे करोगे, ये आपका प्रॉब्लम है. ठीक है, चलो मैं बता देता हूँ. जब रिजल्ट सेट का फंक्शन लिखोगे ना, ये वाला फंक्शन लिखोगे, तो इसमें एक लिस्ट बना लेना जो स्टूडेंट टाइप की होगी. तो स्टूडेंट क्लास कहीं ना कहीं डिफाइंड होनी चाहिए, और उस स्टूडेंट क्लास के पास ये 4 प्रॉपर्टीज होंगी, ये 4 फील्ड्स होंगी. ओके, सो देखिए वेरिएशन तो इतना सारा है कि हम कर सकते हैं टू कंबाइन टू टॉपिक्स. ओके, चलें. अब आप अभी आप इसे सॉल्व कर लीजिए, सॉल्यूशन हो जाए. आई विल शेयर यू विद दी. ऋषभ अभी तो कोई आइडिया नहीं है मुझे, है ना. आई डू नॉट हैव एनी आइडिया अबाउट द प्रैक्टिकल एंटम प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन. ओके, इफ देयर इज, फर्स्ट you came to know, and from that notice I will came to know about the examination. Okay, so if any one of us came to know about the viva, we'll discuss कि कैसे होगा, क्या होगा, what will be the schedule, what will be the process, everything. Okay, so चलें भैया सॉल्व कर लें, आप सॉल्व कर लें. ठीक है, I am waiting for, if you have any query, I am here looking to answer your queries if you have any.
सर हाँ बेटा बोले बोले बेटा। सर कल जो आपने ये कल जेडीबीसी का जो पूरा ये डेमो करवाया, मतलब ये जो हमने कल को कोड किया था माई मेन का, तो उसमें सर मेरा कोड वो जो है डेटाबेस लिंक नहीं हो रहा उससे। बेटा तेरा ये एक्सएम्प ऑन है? हाँ मेरा सर एक्सएम्प ऑन है। सर आप पोस्ट बनाइए, मैं आपको शेयर स्क्रीन करता हूँ, आप बताते जाइएगा फिर। पोस्ट वेट, बताओ तुम्हारा नाम। सर शौर्य दीक्षित। ओके बना दिया तुमको पोस्ट। मुझे एग्जिट पर मत करना है ना। नहीं 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 सर नहीं। नहीं तो तुमने मुझे रिमूव कर दिया था उनसे। ओके रुक जाओ, नहीं मैं सर। स्क्रीन शेयरिंग वन पार्टिसिपेशन मल्टीपल कैन शेयर एडवांस। रुक जाओ, पोस्ट कर सकता है कि नहीं। ओनली होस्ट, सर ओके ठीक है। सर आ कोस्ट, गया होगा मेरा सर। हाँ स्क्रीन आ रहा है तुम्हारा। रुक जाओ, बताओ। सर ये कल हमने ये बनाया था पूरा कोड, तो ये आपने जहाँ से मैं कनेक्शन इसको। दिखाओ मुझे, कनेक्शन। ये हमने कल नहीं परसों का क्वेश्चन होगा ये। सर नहीं, ये कल ही बनाया था हमने। कल ही का है? कल ही का है सर ये। अच्छा इंसर्ट डेटा, कनेक्शन का इंसर्ट कोड डेटा। दिखा, कनेक्शन का कोड दिखा। तेरे पास जीएलए नाम का डेटाबेस है? यस सर ये रहा। हाँ जाओ एक्सएम पे जाओ, एक्सएम पे जाओ। यस सर ये रहा। मुझे एक्सएम दिख नहीं रहा है, तुमने सिर्फ शायद स्क्रीन अच्छा शेयरिंग में सर इसको एक सेलेक्ट मिनट किया सर होगा ना। सर ये मेरा एक्सएम्प आ रहा है। हाँ जी, एडमिन पे चले जाओ, पीएचपी माय एडमिन पे। वेट अ मिनट सर, ये पूरा नहीं शो हो रहा है, पता नहीं क्यों। बेटा शेयर स्क्रीन पे जाके स्क्रीन पे क्लिक कर देना, जाके दोबारा शेयरिंग पे जाओ और स्क्रीन पे वो अच्छा कर दो, स्क्रीन पे आ गया, हाँ यस सर हो गया। है ना। अभी आ रहा है सर पूरा। हाँ हाँ दिख रहा है। जीएलए नाम का डेटाबेस नहीं दिख रहा ना, कहाँ है? ये रहा सर पीएचपी माई एडमिन में, ये रहा। नहीं पीएचपी माय एडमिन में टेबल है जीएलए नाम का। टेबल है ये। ये तुमने टेबल बना के रखा है। तुमको न्यू पे क्लिक करो, ऊपर न्यू दिख रहा है ना। हम्म न्यू पे, ये वाला न्यू नहीं, ये वाला न्यू नहीं। ये। हाँ इस न्यू पे, ठीक है। हम्म अब बनाओ, क्रिएट डेटाबेस का नाम रखो जीएलए। ओके क्रिएट कर दो। अब टेबल का नाम रखो, क्या था? स्टूडेंट, STUDENT, है ना। स्मॉल में लिख दो, वैसे तो कैप्स में। 4 कॉलम ही थे उसमें, ठीक। हम्म, रोल नंबर, नेम, ईमेल। ये क्या हुआ? कुछ अच्छा नहीं, सेव क्रिएट हो हो रहा गया वो, है ना। इसको करो चेंज। रुक जाओ, स्ट्रक्चर है ना, हाँ स्ट्रक्चर को चेंज करो, ठीक है। नाउ यू हैव टू क्रिएट इंडेक्स ऑन कॉलम 1 गो। नहीं है, तुमको कॉलम ऐड करना है। कुछ तो हो रहा है तुम्हारे सिस्टम पे, क्यों हो रहा है ये नहीं मालूम। एक काम करो, रुको, है ना। सर ऐड करके देखता हूँ इसमें, हाँ ऐड ऐड हो कर लो जाए। ना, यहाँ है ना ये 2 कॉलम ऐड कर लो, नीचे नीचे 2, ठीक है। आफ्टर नेम 2 कॉलम कर लो, ऊपर वाला प्लस, हाँ ओके। गो, आफ्टर नेम, आफ्टर नेम, हाँ गो। ईमेल ईमेल, और क्या था, सीपीआई। सीपीआई का टाइप चेंज करो। ईमेल का टाइप वैरचर लेना, सीपीआई का टाइप डबल लेना, और वैरचर में वैल्यू दो, लेंथ दो, लेंथ 250। 250। हाँ 250 कैरेक्टर्स। और इसमें इसमें कुछ मत दो, इसमें कुछ मत दो, छोड़ दो ये, ऑटोमेटिकली मैनेज करने दो। सेव करो। तुमको अभी चेंज करना है नेम को भी, है ना। ये हो गया तुम्हारा। स्ट्रक्चर पे दोबारा क्लिक करो, स्ट्रक्चर पे दोबारा क्लिक करो। नेम वाले कॉलम को देखो इंट आ रहा है, उसको एडिट करो, चेंज, हाँ चेंज। इसका टाइप आप चेंज करो, टेक्स्ट। लेंथ 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 लेंथ, हाँ लेंथ हटा लेंथ देता हूँ। डिलीट कर दो, हटा दो, हाँ। अपने आप 255 कैरेक्टर ले लेगा डिफॉल्ट वैल्यू, ओके। और चलो ये से हो गया अब तुम्हारा। हम्म। बाकी सारी चीजें सही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपने कोड पे चले जाओ। यस सर। अब एग्जीक्यूट करके देखो। समथिंग समथिंग, एक करली ब्रेसेस कम है शायद। एक करली ब्रेसेस का इशू, एक और लगा दो, हाँ देखो।
चलिए, अभी तक तो एक्सेप्शन नहीं आया, लेकिन देख सकते हैं। ओके, हाँ ये वाला एरर है, मैंने हाँ उसमें जी, हाँ जी, नो यूआरएल में मैंने अपना हाँ वो डाल दिया पीएमए हाँ, स्ट्रिक्टली। कनेक्शन में, हाँ, रूट, ओके, टेबल GLA GLA डॉट डॉट जी। GLA डज नॉट एग्जिस्ट। तो तुमने जो वो किया है ना अपने इंसर्ट कमांड में, इंसर्ट में देखो, तुमको हर जगह चेंज करना पड़ेगा। इंसर्ट इनटू GLA की जगह आएगा स्टूडेंट। सर कल आपने GLA ही लिख रखा था। अरे बेटा, मेरा कोड चला था। हाँ चला तो था सर, वही मैं तभी कह रहा हूँ। फिर मैंने नहीं, रुक 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 रुक, पूरा पढ़ने देना, सब जगह पढ़ने दे। अब कोड है ना, स्टूडेंट अपडेट भी चलने वाला है ना, क्योंकि ठीक, अपडेट स्टूडेंट तो है सर। सेलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम GLA को स्टूडेंट करनी तो नहीं चलेगा फिर से, ठीक है। और स्क्रॉल कर, डिलीट, देख डिलीट फ्रॉम GLA उसको स्टूडेंट कर। अब यहाँ पे कॉलम नेम का देख, तूने अपर केस लोअर केस मिक्स दिया है, अगर चल गया तो ठीक है, नहीं तो हो सकता है प्रॉब्लम आ जाए, ठीक है। रोल नंबर, क्योंकि अब मैंने पूरा डेटा में वो टेबल नेम ही यही नहीं है, कोई भी ऐसा नेम ही नहीं है टेबल में। चलो ठीक है, आओ करो, देखें यहाँ तुम्हारा पे कोड चल चेंज, जाए। अच्छी बात है, तुमने पूरा कोड लिख दिया। हाँ, रोल नंबर, यस, ये भी एक्सेप्शन फेंकता। और ये भी कॉलम करता नेम, सर। हाँ ये भी करेगा। कॉलम नेम एकदम मैच करने पड़ता है। केस कंट्रोल को केस इनसेंसिटिव होता है। देख यहाँ पे कहीं पे कुछ दिक्कत, ये ईमेल की स्पेलिंग यहाँ पे है ना, मैं भी गलत लिख देता हूँ बहुत बार। चलो देखो, चला के देखो, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। SQL आएगा तो देख ही लेंगे वो। AB अगले भी AB लिख दे, @ मत लगा, कुछ भी लिख दे, जल्दी से जल्दी करना है अपने को। AB एंटर, हाँ 2.2। अब क्या हो गया, ईमेल नॉट फाउंड, SQL एक्सेप्शन है ना ये, मेन 27। ईमेल नॉट क्लिक, फाउंड। हाँ क्लिक कर इस लाइन पे, मेन 27 सीधे पहुंच जाएगा उस एरर लाइन पे। ये मेन 27 एकदम नीचे है ना, देख नीचे एकदम, हाँ ये रहा। हाँ वो मिनिमाइज कर दे, इसको मिनिमाइज कर दे। ना हाँ पहुंचा दिया उसने, वो देख गेट कॉलम लेवल ई में, सेलेक्ट वाले में है ना, सेलेक्ट के सारे कॉलम चेंज कर दे। सिर्फ ईमेल में प्रॉब्लम आ रही है, बाकी सब तो केस इनसेंसिटिव हो गया है, तो हो जाएगा शायद। CPI भी चेंज कर दे, डॉट से नहीं लिखा है अपन ने, वो डॉट को प्रॉब्लम दे देगा अगला। इसकी अगली लाइन, मतलब ऊपर के तो चल गए थे, नीचे की में प्रॉब्लम दे देता वो, ठीक है। एक और बार एग्जीक्यूट, ओके। यस सर। अरे वो सर मैंने वो PHP माय एडमिन में इसी में GLA का ही डेटा बना रहा था। बेटा तुम पहली बार जाओगे ना, मतलब पहली बार कर रहे हो ना, धीरे धीरे एक्सप्लोर करोगे ना, तो दैट यस विल सर। बिकम गुड। मुझे बहुत अच्छा लगा, तुमने पूरा कोड लिखा हुआ है और उसमें हमने इतने हिट एंड ट्रायल किए। अगर बेटा हिट एंड ट्रायल नहीं होता तो देखो, एरर्स पहली बार में नहीं मिलते ना, तो कभी रिजॉल्व नहीं करता ना। अगर कभी भी एरर नहीं आया, तो इसलिए एरर आए हैं तो वो बहुत अच्छी चीज है, ठीक है, बहुत अच्छी चीज है। सर कल आपने ये मेरे को एक लाइन ही समझ नहीं, ये वाला जो हमने लिखा है क्लास डॉट फॉर नेम, ये किस लिए होता है? बेटा ये ड्राइवर लोड करने के लिए होता है, इसको कमेंट भी कर देगा तो भी चल जाएगा। ये SJ लिख रहा है, SJ क्यों लिख रहा है, CJ है यहाँ पे, है ना। देख वो तेरे इस वाली लाइन से तो उठा नहीं रहा है, वो तेरे उससे उठा रहा है, ऑटोमेटिकली लोड कर रहा है उसको। ये ड्राइवर तो मिला नहीं है ना, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली लोड कर रहा है। गिव मी अ सेकंड, है ना। हाँ बेटा, सो
यस ये ड्राइवर लोड करने के लिए, वो एसजे को सीजे करना है ना, वो कमांड जो है वो सीजे है ना, com.mysql.cj फॉर नेम यस में सर जो है ना उसको सीजे करना है। वो ये वाली लाइन को चला ही नहीं रहा, उसको ड्राइवर ऑटोमेटिकली मिल रहा है, इसलिए वो उठा रहा है माई कनेक्टर से, वो इस वाली लाइन को एग्जीक्यूट ही नहीं कर रहा। तू कमेंट आउट भी कर देगा तो भी चल जाएगी। और अगर सर मैं ड्राइवर नहीं लोड करता, मतलब ये कमेंट माई आउट कर एसक्यूएल दे, कनेक्टर में लगाता नहीं और इसी को ही लिख देता तो भी चल हाँ जाता कोड। नहीं चलता, उसको ये वहीं से ये वाली क्लास मिल रही है, उसको ये क्लास मिली नहीं तो उसने बोला जो अप्रोप्रिएट क्लास है मैं खुद लोड कर दूंगा, वो ड्राइवर मैनेजर खुद लोड कर देता है। ठीक है, इसको सीजे कर दे, एसजे को सीजे कर दे, है ना। ठीक, ओके, एक जे हटाओ। यस सर। ठीक, चलें, ओके सर, थैंक यू सर। ओके बेटा। तो ये रेस्ट ऑफ द क्लास आपका क्या पोजीशन है, आप लोगों ने ये कोड करके देखा है, इतना काम हुआ है आपका। बेटा स्क्रीन ऑफ कर दे अपनी, है ना। सो क्लास, रेस्ट ऑफ द क्लास आप लोग कोड कंप्लीट करिएगा, कोई भी डाउट हो तो आई विल सॉल्व दैट ऑन द व्हाट्सएप और इन द नेक्स्ट क्लास यू कैन डिस्कस बाय शेयरिंग योर स्क्रीन। आई थैंक यू सॉरी फॉर गिविंग दिस थिंग कि को होस्ट बना दोगे तो स्क्रीन शेयर कर सकते हो, दैट्स एन ग्रेट थिंग। तो भैया अब हम क्या कर रहे हैं, आई एम एंडिंग दिस सेशन, विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, हम स्ट्रीम एपीआई स्टार्ट करेंगे। इफ यू वांट यू कैन गो ऑन यूट्यूब एंड सर्च फॉर द स्ट्रीम एपीआई वीडियोस। सो हम थोड़ा सा जल्दी जल्दी उसको डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास। थैंक यू सर।